This is Trace of Discuss from Nutrilabs Life Forms, and I've been using it for past 3 to 4 months. And I think this is quite helpful, in recreating a natural environment for your fish. Basically, this contains trace elements of different minerals, which are being naturally found in discuss environments or in rivers in which these fishes live. So this is the product that I've been using. This is another product that I use, for I think every tank. This is the Biocycle Quick from same brand, Life from Nutrilabs. So this is from the same guy. Um, it just helps cycle your tank fast, or this is like just beneficial bacteria for the tank. So ये भी use करता हूँ मैं. So this is the third product that I use for discuss. This is Isha Optima. So it helps you basically recreate, I would say recreate natural environment for your fish, because मतलब ये भी वही करता है, trace elements add करता है. और this is also recommended if you want to form pairs. मतलब अगर आप form pair इसको add करोगे तो it will basically boost their tendency to form pairs. तो उसके लिए भी recommended है ये. और ये ईशा से है. सो मतलब इट्स रियली इफेक्टिव. आई हैव यूज इट इन माई इन माई डिस्कस टैंक, और उसके बाद मुझे 2 पेयर्स तुरंत फॉर्म हो गए थे. सो दिस इज़ लाइक अनदर प्रोडक्ट डेट आई यूज. दिस इज़ Hexamida, Isha Hexamida, and I'm using it for like last one year. ये आई थिंक मेरे पास ये तीसरा पैक है. 2 पैक, एक पैक ओपन है और 2 पैक आई थिंक स्टिल क्लोज्ड है. एक ख़त्म भी कर दिया मैंने शायद, आई डोंट रिमेंबर. सो दिस इज़ लाइक रियली इफेक्टिव. ये HITH और दूसरे उसके लिए भी, पैरासाइट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज इट्स अ कॉपर बेस्ड मेडिसिन. सो ये HITH में तो बहुत इफेक्टिव है. मैंने इनको बोलिवियन रैम्स के साथ ट्राई करा है, इनको डिस्कस के साथ ट्राई करा है, एंड इट वर्क्स लाइक मेरिकल, इट वर्क्स लाइक चार्म. सो आपको अगर HITH या एक्सटर्नल पैरासाइट का कोई भी इशू होता है, यू कैन यूज़ दिस. दिस इज़ लाइक रियली सेफ़ फॉर डिस्कस. मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ. हाँ, इसको यूज़ करने से पहले आपको एक बार लीफलेट मिलता है इसके साथ, उससे गो थ्रू ज़रूर करें. उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू यूज़ कॉपर विथ क्रस्टेशियंस like shrimps and snails as well. So it will kill them eventually. So you have to be very cautious about that. So ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ईशा से, बिकॉज इट्स रियली इफेक्टिव. नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फीडिंग. सो मैं इनको क्या फीड करता हूँ और इनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है, सो वो तो आपको ही पता चलेगा जब आप उनको फीड करोगे. बट मेरा जो रिव्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फीडिंग में, वो मैं बताता हूँ. और लेट्स जस्ट हैव अ लुक हाउ ब्यूटीफुल दीज फिशेस आर. ये मेरा एक छोटा सा डिस्कस टैंक है, आई विल शो यू दैट. सो दिस इज़ माय स्मॉल डिस्कस टैंक. ये मेरा बेसिकली एक बड़ा, इसमें ये पूरा ग्रुप था डिस्कस का. देयर वर लाइक 8 and 9 ऑफ देम इन इनिशियल फेज. मैं वाटर चेंजेस हैवी कर रहा था. दिस इज़ अ 250 लीटर एक्वेरियम. सो इसमें मैं अप टू 6 फिशेस रख सकता था ईजिली, बट आई वॉज कीपिंग 8 or 9 अराउंड दैट टाइम. So it was not, it was at their beyond its peak limit. It was really a nonsense thing to do, but मेरे लिए it worked out because I was doing water changes every 2 days. ठीक है, so it was working out for me. So you can see how active these fishes are, right? Look at this color. So these bubbles are coming from this skimmer. Skimmer के लिए skimmer लगा रखा because I don't like film that oil film on top of aquarium. I put this in. Also it provides extra radiation because इसका temperature जो है वो 28 के अराउंड मेंटेन रहता है, even though it's in air conditioned room. मैं इसमें हीटर डाल के रखता हूँ. So this is like my kind of display tank. I'll try to enhance it in coming days, because I'll have to put a tons of plants. अभी मैंने इसमें सिंगोनियम की रूट्स को इमर्स करके रखा हुआ है. You can see there is this pair of corridoras here. I just seen them doing this T position. This is definitely 100% a pair.
So this is my another favorite fish, Corridoras. So डिस्कस की एक फूड के बारे में बात करते हैं. तो मैं इनको बेसिकली ब्रेड वॉर्म्स एज अ मेन फीड देता हूँ. और उसके अलावा मेरे पास सेरा का टर्की. सो ब्रेड वॉर्म्स के अलावा ड्राई स्टेपल में मैं बेसिकली उनको टर्की हार्ट, डिस्कस बायोगोल्ड, डिस्कस वाइब्रा बाइट्स, और साथ में कभी कभी टेट्राबिट्स में गार्लिक पल्स, ये ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं बेसिकली गार्लिक ऑयल के. और तो इनको मैं उसमें मिक्स करके और टेट्राबिट्स में, और अगर कोई मेडिसिन साथ में देनी होती है तो वो मिक्स करके टेट्राबिट्स में दे देता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई फीड देम बेसिकली. और उसके अलावा मैंने बीच में 1-2 और प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे फॉर फीडिंग देम. हाँ, देयर इज़ दिस अनदर प्रोडक्ट डिस्कस फ्रॉम ट्रॉपिकल, डिस्कस ग्रैम D50+. इसमें बेसिकली रेड पेपर एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है टू इनहांस कलर. सो ये भी फीड करा था मैंने इन बिटवीन. दिस अनदर प्रोडक्ट, दिस इज़ लाइक फ्रोज़न ड्राइड आर्टिमिया. ठीक है, ये भी फीड करता हूँ मैं यूजुअली. दीज कम इन दिस टाइप्स ऑफ क्यूब्स और ये फ्लोट करते हैं. सो डिस्कस को पसंद आता है ये भी मेरे हिसाब से. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम. द लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेट्राबिट्स. सो टेट्राबिट्स में आपको एज आई टोल्ड यू कि मैं गार्लिक पल्स में मिक्स करके मेडिसिन लेनी होती है, या फिर स्टेपल की तरह भी यूज़ करता हूँ. आई एम शोइंग यू दिस स्मॉल बॉक्स बिकॉज बड़े बॉक्स दूसरे फिश रूम में रखे हुए हैं. सो ये भी फीड करता हूँ मैं. और ये मेरा फीड का बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली मिक्स एंड फीड देम अलॉन्ग विद ब्लड वॉर्म्स और फ्रीज मतलब फ्रोजन डेफनिया के अलावा. और दे एक्सेप्ट दीज फूड वेरी वेल. So this was a brief about my journey with these beautiful fishes. मेरे लिए तो बहुत अच्छी जर्नी थी बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला. और द एक्सपीरियंस व्हेन यू ब्रीड, you see those fries going wigglers, going eggs to wigglers, and wigglers to fries, free swimming fries, and then turning those fish eggs turning into real fishes. So it's amazing. Also keeping these fishes comes with natural benefit of seeing these beauty all the time you want, anytime you want in your house. So मेरा यही एक्सपीरियंस था. आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग कीपिंग दिस फिशेस, रिगार्डिंग कि स्टार्ट कैसे करना है, रिगार्डिंग बेबीज़, हाउ टू कीप बेबीज़, तो आई शेयर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था, आई हैव दिस दिस रियली ब्यूटीफुल जायंट डिस्कस. फॉर मी इट्स जायंट बिकॉज इट्स बिगेस्ट वन ऑफ इन ऑल ऑफ देम. सो उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं. This was like doing really well from the very start. I got it, it was like really heavy fish at that time. I got it, मतलब जो उसका previous owner था वो इसको बहुत ज़्यादा feed करता था. And it was like really a big disc, big fat disc. और उसके बाद I got it in my home. I was very I was very scared in the beginning because उसके पहले मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था because I lost 3 एडल्ट साइज डिस्कस एट दैट टाइम. और उसकी वजह से मेरा मुझे बहुत डर लग रहा था. बट आई टुक द चांस एंड आई गॉट दीज 8 ब्यूटीज़ टू माई होम. उसके बाद बेसिकली ये था कि इट वॉज गोइंग वेरी स्मूथ फ्रॉम द पॉइंट आई हैव टेकन देम टू माई होम. बट इवेंचुअली आई हैड टू रिलोकेट टू माई होम टाउन. और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आए हम और सबको एक हो गया आते ही. सो द इशू वॉज कि मैंने नई बेसिकली मेरे पास होल व्हाट डू वी से दिस कि होल हनीकॉम्ब वुड थी. सो उसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं. आई थॉट इट विल लुक नाइस कॉरिडोर्स रोमिंग इन दोज होल्स. तो मैंने इनको मूव करा और मैंने वो ड्रिफ्ट फूड सीधे इसमें इनके टैंक्स में डाल दी. सो उसकी वजह से बहुत सारा टाइनिस रिलीज़ हुआ. और आई थिंक वो जो हनीकॉम्ब वुड है वो रॉट होती है बहुत गंदी तरीके से. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पैरामीटर्स बहुत हिले होंगे और सबको एक हो गया स्ट्रेस की वजह से. तो उसके बाद सबको सही करा मैंने वापस और बहुत मेहनत करी. मतलब इतनी मेहनत नहीं थी बट हाँ बहुत ईजिली सही कर लिया मैंने. नेक्स्ट 2 to 3 days में दे वर लाइक हील्ड.
और उसके बाद आई मूव देम टू दिस फ़िश रूम, मतलब जो स्टोर रूम था मैंने उसको फ़िश रूम में कन्वर्ट करा और उसमें मूव करा। और बेसिकली उस फ़िश रूम में व्हेन आई वाज फीडिंग देम वंस, I forgot to turn off the light, turn on the filter again. I usually what I do, I turn off the filter and then feed them because filter में सब कुछ फंस जाता है. So I turned off the filter. I forgot to turn it on again, and the next morning what I saw कि only this one was gasping for air, and I was like, dude, I fucked up. So मैंने मतलब बेसिकली वो देखा सीन, तो आई वॉज लाइक वेरी आई थॉट कि अब मैं डिस्कस कभी रखना सीख नहीं पाऊँगा बिकॉज मैं कभी रख ही नहीं पा रहा था। तो मैंने आई लॉस्ट माई होप एंड एवरीथिंग, इट वॉज बिगेस्ट इन वन ऑल ऑफ देम। सो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने फ़िल्टर चालू रखा, मैंने ट्राई करा कि मतलब एरिएशन बढ़ा दिया और सब कुछ कर दिया। फिर जब नेक्स्ट डे देखा तो मतलब ये इट वॉज नॉट एबल टू स्विम प्रॉपरली, एंड वो उसके बाद तो मुझे लगा यार व्हाट डिड आई डू, ये क्या कैसे हो गया और ये है वो है। सो आई टुक इट आउट एंड मैंने इसको सेपरेट एक बेसिकली हॉस्पिटल टैंक में डाला और आई स्टार्टेड ट्रीटिंग इट विथ मैग्नीशियम सल्फेट विच इज़ एप्सम सॉल्ट, और साथ में मैंने इसको बेसिकली टेट्रासाइक्लिन दी थी। सो इफ़ देयर वाज लाइक एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एनीथिंग सच एज दैट, क्योंकि वो रात पर फिल्टर टर्न ऑफ रहने की वजह से अमोनिया तो काफ़ी बड़ा ही होगा। तो मैंने इन दोनों चीज़ों से ट्रीट करा इसको। 2-3 दिन हुए थे और इट वाज लाइक रियली रिकवरिंग। मतलब उसका जो ब्लैडर इशू था, क्योंकि इट लॉस ऑल द बायंसी कैपेबिलिटी। सो इधर उधर टकराने लगी थी, ये हो गया था वो हो गया था, मतलब और बिल्कुल भी स्विम नहीं कर पा रही थी। सो आई लॉस ऑल द होप की, क्योंकि उसकी इसी तरीके से मैंने पिछली बार भी डिस्कस की थी अपनी लास्ट इसके पहले जो मेरे पास ट्रायो था। तो उसके बाद इसने क्या करा, व्हेन आई थॉट कि इट हैज़ रिकवर्ड वेरी वेल एंड एवरीथिंग इज़ कि स्मूथ जा रही है, अभी थोड़ा सा काफ़ी रिकवर 70% रिकवर कर चुकी थी। इट वॉज मेंटेनिंग इट्स बैलेंस बट नॉट वेरी वेल। सो द नेक्स्ट डे आई सॉ कि भाई इसका पूरा जो एनल फिल्म के आगे का पोर्शन होता है वो पूरा डैमेज कर लिया इसने। इट हैड लाइक 1 इंच आई थिंक कट था इसके 1 इंच का। तो उसकी वजह से आई कुड सी आई वॉज लाइक अरे यार मतलब अब तो कुछ चांस ही नहीं है इसके बचने का, बिकॉज इतना बड़ा घाव और उसके बाद ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, अब क्या होगा। बट आई केप्ट माई काम एंड केप्ट डूइंग द सेम थिंग। जो कंसिस्टेंसी थी आई मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी और इट रिकवर्ड इन विदिन 3 to 4 days। इट रिकवर्ड फुली, मतलब 2 हफ्ते बाद इट वॉज ईटिंग वेरी वेल और बहुत अच्छे से मतलब पूरी रिकवर हो गई है। और नाउ इट्स लाइक बुली ऑफ दिस टैंक, सबको बुली करती है और बहुत बदतमीज है। सो दिस वाज माय अनदर एक्सपीरियंस विद दिस फिश। रिफ्लेक्शन है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई कांट राइट नाउ, I'll have to turn off all the lights, so can't do that right now. So this was all about this video. Hope to see you guys in next video. If you like the content, if you found this helpful, आपको अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट रेड बटन, मेक इट ग्रे, और you can I can help you resolve your queries if you have any, like if you need any help regarding if you need any help regarding planted tanks, I can help you that because I'm having this experience as a hobbyist, not as a retailer or a breeder, right? So I'll share each and everything with you guys. और आपको और कोई हेल्प चाहिए हो या कोई इमरजेंसी हो, यू कैन हिट मी ऑन इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरा पेज भी चेक करिए, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे किसी इमरजेंसी में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू जितना हो सकता है। आई नो अ फ्यू पीपल हु हैव लाइक रियली गुड नॉलेज अबाउट फिशेज एंड डिस्कस कीपिंग एज वेल, सो आई विल हेल्प यू दैट विद दैट एज वेल। सो दैट वाज इट।